This is the syllabus for CA Inter Financial Management. We are starting with a topic of cost of capital. We have covered all formula, concepts and important practical problems in this video. So let us find out if this is the only revision you will ever need. First topic we are starting cost of capital. So let us see what is meant by cost of capital. So we know that companies raise capital or funds from different sources of finance, which may include debentures, loans, preference shares, equity shares, retained earnings, or convertibles. Convertibles can be debenture or preference share, and these sources of finance are called as securities of a company. So company has to pay interest or dividend on these securities, and flotation cost is also incurred to raise funds, which is called as a cost of capital of a company. It means cost of capital is cost of interest and the flotation cost of raising a fund. So cost of capital is a rate of return that a company must earn on its capital. It means जितनी cost है company की उतनी return आपको achieve करनी है on capital to satisfy the expectations of investors who have provided funds to the company. And this cost of capital is also known as cut-off rate, hurdle rate, discount rate, or minimum rate of return required by the company. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के देखें कितने टाइप्स हैं. डिफरेंट टाइप्स आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस. सो इट विल इंक्लूड नंबर 1 कॉस्ट ऑफ डेट, सेकंड वी विल सी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नंबर 3 कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फोर्थ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, फिफ्थ की कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल्स, सिक्स्थ की ओवरऑल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. लेट अस डिस्कस कॉस्ट ऑफ डेट. Cost of debt has two components. Number 1 is interest cost after tax. In case of interest, it is expense, so we also consider tax saving. Therefore, interest is taken after tax. Second component is flotation cost, which also means issue cost of debt, which is different between our issue price and redemption value. So, cost of debt refers to average cost of interest and flotation cost on average amount of debt utilized by company. So number 1, we are starting cost of debt. So debt includes debentures and loans from banks or financial institutions. So cost of debt refers to cost of interest and flotation cost on average basis. तो डेट यूज करने के लिए जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या जो फ्लोटेशन कॉस्ट हो रही है हमारी उसकी कितनी कॉस्ट है ऑन एवरेज बेसिस, दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट. जिसके डिफरेंट मेथड्स हैं. नंबर 1 इज कॉस्ट ऑफ परपेचुअल ऑन नॉन रिडीमेबल डेट. तो जब आपको लाइफ मेंशन नहीं की है डेट की, किसी का जो परपेचुअल डेट, तो उसका फार्मूला बन जाएगा KG इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट इशू प्राइस ऑफ डेट इनटू 100. तो शॉर्टकट फार्मूला ये KG इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट है आपका I, उसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स इनटू 1 माइनस T, और P है आपका नेट इशू प्राइस टाइम्स 100. तो सेकंड केस है व्हेन डेट इज रीडीमेबल आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, मे बी 5 year 10 year. Then we have cost of redeemable debt. So first let us see formula approach. So in this case KG is equal to average annual cost of using debt and divided by average amount of debt. तो कितनी कॉस्ट आपको पड़ रही है एवरेज बेसिस पर ऑन एनुअल, एंड जो एवरेज अमाउंट कितना है डेट था टाइम्स 100. फार्मूला बन जाएगा KG is equal to इंटरेस्ट की कॉस्ट आपको पड़ेगी इंटरेस्ट I इंटू 1 माइनस T प्लस रिडेम्पशन माइनस इशू प्राइस. ये होगी डिफरेंट आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट. एक तरीके से हम इसको कहते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डेट. तो उसको फिर आपने राइट ऑफ करना है ओवर इस लाइफ, जितनी लाइफ है आपकी एन एज लाइफ. तो इट मीन्स ये पर एनम बन जाएगा आपका टोटल लॉस और प्लस इंटरेस्ट की कॉस्ट है डिवाइडेड बाय R प्लस P डिवाइडेड बाय 2, जिसे कहा गया एवरेज अमाउंट ऑफ डेट यूज्ड बाय कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर टाइम्स 100. तो इस केस में I है आपका एनुअल इंटरेस्ट, P है आपका इशू प्राइस. इशू प्राइस हो सकता है आपका फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन एक्सपेंसिव, और R है आपका रिडेम्पशन वैल्यू. रिडेम्पशन वैल्यू होती है फेस वैल्यू पर या इंक्लूडिंग प्रीमियम. एंड N इज लाइफ ऑफ डेट विच इज कॉल्ड मैच्योरिटी पीरियड, एंड स्मॉल P है आपका टैक्स रेट ऑफ कंपनी. नंबर थर्ड मेथड is to determine cost of debt is cost of redeemable debt by present value approach. This is also called as internal rate of return approach. So in this case what happens, so we calculate present value of future cash outflows so that it becomes equal to initial price. So we can say that
KG is a cash rate of return, means value of R at which present value of future cash outflows becomes equal to initial issue price और मार्केट प्राइस है। तो इस केस में आउटफ्लो क्या होंगे आपके, जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे आफ्टर टैक्स एंड रिडेम्पशन वैल्यू, तो उसकी कैलकुलेट करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू एंड सो दैट इट इज इक्वल टू करंट इशू प्राइस। कई बार होता है आपका प्रेजेंट की डिबेंचर है, पुराना डिबेंचर है, तो उस केस में हम लिखते हैं मार्केट प्राइस। तो गेट यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू इशू प्राइस और मार्केट प्राइस ऑफ डेट। तो उसमें पी आपको देखो मेंशन किया है, तो आपको एक टेबल ड्रॉ करना है। तो अपने ईयर्स मेंशन किए हैं 1 to n ईयर एंड लास्ट ईयर। कैश आउटफ्लोज आ जाएंगे आपके, हर साल आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स, और लास्ट में आपकी आएगी रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन कैन बी आई फेस वैल्यू और इट कैन बी आई प्रीमियम। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो नॉर्मली हम लिखते हैं रिडेम्पशन इज टू फेस वैल्यू। अब आप पीवी वेक्टर कैलकुलेट कीजिए, एक लो रेट है एक हाई रेट है। तो लो रेट है जो आपका कॉस्ट ऑफ डेट दिया है आफ्टर टैक्स, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपकी दो प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी, वन विल बी एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वन विल बी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इन दोनों के बीच में आपने इंटरपोलेट करना है, वो आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ डेट, इसीलिए इसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन मेथड आल्सो। तो एक मीन देखो फार्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट के लिए, जो लो रेट ऑफ आपने इंटरेस्ट लिया है RL प्लस उसके बेस पे जो प्रेजेंट वैल्यू है एट लो रेट, इसको इक्वल करना है हमने इशू प्राइस के, या जो करंट प्राइस है। नीचे आएगा डिफरेंस इन बिटवीन टू प्रेजेंट वैल्यूज एंड डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक तरीके से यूनिकली मेथड है, देखिए आपका इतना डिफरेंस है प्रेजेंट वैल्यू में, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में इतना डिफरेंस आपको मिल रहे हैं, और इस डिफरेंस के लिए पीवी जो है आपकी और माइनस इशू प्राइस में जो डिफरेंस है उसके लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होना चाहिए, तो वो आपका ऐड हो जाएगा लो रेट में, वो बन जाएगी कॉस्ट ऑफ डेट। और कई बार होता है कि हम डिबेंचर को रिडीम करके इंस्टॉलमेंट्स में हर साल में, तो उस केस में भी सिर्फ यही अप्रोच अप्लाई होती है। So when debt is repaid or redeemed in installments, in that case also only IRR approach is applied to determine cost of debt। क्योंकि उस केस में क्या होगा, आपके हर साल के कैश आउटफ्लो चेंज हो जाएंगे, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट आएगा आफ्टर टैक्स प्लस रिडेम्पशन वैल्यू भी आपकी आ जाएगी इंस्टॉलमेंट्स में। So let us see cost of preference share. So cost of preference share has two components. Number one is the cost of fixed annual dividend, and second is our issue cost, which is also called flotation cost of issue of preference share, which represents the difference between redemption value and issue price. So thus cost of preference share refers to percentage of average cost of interest and issue cost on average amount of preference share utilized by a company. तो प्रेफरेंस शेयर भी डिबेंचर की करे हैं, डेट की करे हैं, बस आपको डिफरेंस मिलेगा। इसमें हम कैश आउटफ्लो में ले रहे हैं इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, और उसमें आ जाएगा सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड, और उसमें कोई टैक्स सेविंग नहीं होगी। लेट अस सी, सो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड फ्लोटेशन कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट में क्या क्या आएगा, एक तो जो डिविडेंड आप पे कर रहे हैं, और प्लस जो हमारा कॉस्ट पड़ रही है इशू करने की, जिसको हम कहते हैं रिडेम्पशन और इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है। इसको हम ये भी कहते हैं किसी एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ अवर सिक्योरिटी और किसी लॉस ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी। तो इसमें भी तीनों मेथड सेम है, डिबेंचर की करें। लेकिन से डिफरेंसेज, नंबर वन है आपका कॉस्ट ऑफ परपेचुअल और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो उसमें जब लाइफ मेंशन नहीं किया आपको, तो केपी बन जाएगा एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड, पीडी है हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड, नीचे आ जाएगा इशू प्राइस है या मार्केट प्राइस, यदि पुराना प्रेफरेंस शेयर है, इनटू 100। इट मीन्स इसमें कोई रिडेम्पशन का रोल नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। सेकंड केस है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, फार्मूला अप्रोच। तो आप देखेंगे सेम फार्मूला है जो कॉस्ट ऑफ डेट में किया था हमने। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का फार्मूला है के पी इक्वल टू एनुअल कॉस्ट कितनी है डिवाइड बाय एवरेज अमाउंट कितना यूटिलाइज कर रही है कंपनी इनटू 100। तो एनुअल कॉस्ट में एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, और जो आपका लॉस हो रहा है इशू में आर माइनस पी, उसको डिवाइड करके लाइफ से, वो बन जाएगा एवरेज अमाउंट पर एनम, और उसको डिवाइड किया हमने एवरेज अमाउंट को यूटिलाइज किया कंपनी ने, विच रिडेम्पशन प्लस इशू प्राइस डिवाइड बाय 2। तो आप देखेंगे बस पीडी आ गया है, पहले था कॉस्ट ऑफ डेट में आई इंटू 1 माइनस पी, उसके लिए आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। तो पीडी हमारा है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये बन जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। थर्ड मेथड है आपका, आप इफ इट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो आप प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच IRR अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो IRR अप्रोच से हमें एग्जैक्ट आंसर मिलता है और जो फार्मूला अप्रोच से हमें मिलता है अप्रोक्सीमेट आंसर। तो दोनों आंसर में आपको डिफरेंस मिल सकता है आपको 0.5%। तो जब क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको अप्लाई करनी है प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच, डिबेंचर में भी और इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर में भी। तो प्रेफरेंस शेयर में देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा, KP इज दैट रेट ऑफ रिटर्न मीन्स वैल्यू फॉर एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू इशू प्राइस। इशू प्राइस होता है, इसको इनफ्लो भी कहते हैं। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कैश रिसीव हो रहा है, जब आप डिविडेंड पे करेंगे या रिडीम करेंगे वो हमारा कैश आउटफ्लो है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हमने इशू प्राइस से इक्वल करनी है। तो डिबेंचर की तरह यहाँ टेबल बना लीजिए, ईयर्स हैं 1 to n, लास्ट ईयर है, कैश आउटफ्लोस में प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा और रिडेम्पशन वैल्यू PV फैक्टर है लो रेट पर और हाई रेट पर, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ले सकते हैं, जो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है वहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। तो आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी 2। अब आप इंटरपोलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा KP लो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू लो रेट माइनस इशू प्राइस अपॉन डिफरेंस इन टू प्रेजेंट वैल्यूज एंड इन डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेम ही मेथड है जो हमने डिबेंचर में अप्लाई किया है, प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच है। तो प्रेफरेंस शेयर का भी यही है, यदि ये रिडीम हो रही है इंस्टॉलमेंट्स में तो आपको सिर्फ IRR मीन्स प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच ही अप्लाई करनी है। नाउ लेट अस डिस्कस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। There are different methods to determine cost of equity. Number 1 is capital asset pricing model, which is also called CAPM. As per CAPM model, cost of equity is a summation of risk-free rate of return plus equity risk premium. So other methods include constant dividend model, constant dividend growth model, realized yield model, and earnings yield model. So cost of equity can be represented on a graph also, which shows a relation between equity and cost of equity. So when equity increases, cost of equity also rises, but at slightly increasing rate. So this is denoted by KE. So cost of equity refers to that rate of return at which present value of future dividends becomes equal to current price of share. तो इट मीन्स कंपनी ने जैसे इक्विटी शेयर इशू किए हैं, अब अपने डिविडेंड पे करना है फ्यूचर में, और इक्विटी की जो लाइफ है परमानेंट होती है, इट इज परपेचुअल कैपिटल। So we will calculate present value of future dividends and so that it becomes equal to price of share. So at what rate of return it becomes equal, that is cost of equity. So there are different methods or approaches हैं to determine cost of equity. Like number 1 is constant dividend model. तो जैसे डिविडेंड्स आपके फ्लक्चुएट होकर रहते हैं, वो प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो फर्स्ट केस में एक कंपनी कॉन्स्टेंट डिविडेंड पे कर रही है। देन वी हैव कॉन्स्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। देखिए आपका डिविडेंड फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना रेट ऑफ चेंज आ रहा है डिविडेंड में, जिसे कहा गया ग्रोथ रेट। यदि डिविडेंड्स नहीं है तो अर्निंग्स मॉडल है, और एक आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है। तो फर्स्ट वी हैव कॉन्स्टेंट डिविडेंड मॉडल, जिसमें देखो आपको मिलेगा टाइम पीरियड 0 है, करंट प्राइस है शेयर का P0, और फ्यूचर में कंपनी डिविडेंड पे कर रही है फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड अप टू इन्फिनिटी। बिकॉज इक्विटी की परमानेंट कैपिटल कंपनी, तो उसकी लाइफ हम लेते हैं इन्फिनिटी, और डिविडेंड्स आपके सेम है एवरी ईयर D1 इक्वल टू D2 एंड D3 अप टू इन्फिनिटी। तो P0 है आपका करंट प्राइस ऑफ शेयर, इट कैन बी इशू प्राइस हो सकता है या फिर मार्केट प्राइस जो चल रहा है आपका, एंड D है आपका कॉन्स्टेंट डिविडेंड पर शेयर। तो अब आपने जो डिविडेंड्स कॉन्स्टेंट है ये परपेचुअली बन जाएगी क्योंकि पूरी लाइफ के लिए है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है, इस डिविडेंड को कैपिटलाइज कर दो आप, डिविडेंड अपॉन रिक्वायर्ड रिटर्न, वो हमारी KE जो मिसिंग है, सो दैट दिस इज इक्वल टू करंट प्राइस ऑफ शेयर। तो यहाँ से फिर आपकी KE आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो KE इज डिविडेंड अपॉन प्राइस इनटू 100 में कितने % हम डिविडेंड पे कर रहे हैं ऑन द बेसिस करंट प्राइस, वो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन जाएगी। तो सेकंड मॉडल है आपका कॉन्स्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है। तो जब आपकी डिविडेंड फ्लक्चुएट करते हैं तो हमने उसमें चेक करना है कि कितना चेंज आ रहा है डिविडेंड में, उसका नाम है ग्रोथ रेट। सो व्हेन डिविडेंड फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर ऑन बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स, देन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ पास्ट डिविडेंड्स। तो पहले हम ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड में कितनी है, फिर उसके बेस पर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिटरमिन कर सकते हैं। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो उसमें हमारा फार्मूला है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर कितना होगा, नेक्स्ट ईयर में कितना पे करेगी कंपनी, करंट प्राइस कितना है शेयर का, और प्लस जितनी ग्रोथ होगी तो वो भी हमारा डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है, वो भी हमारी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। सो वी हैव टू ऐड एवरेज ग्रोथ रेट।
तो आपका फार्मूला बन जाता है के इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो नेक्स्ट ईयर का है उसको हम शो करेंगे गिवन से अपॉन प्राइस P0 प्लस ग्रोथ। तो गिवन है आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अब यदि कई बार होता है क्वेश्चन में आपको दिया है करंट डिविडेंड पर शेयर, उसको हम शो करते हैं जी नोट, उसमें फिर आपकी ग्रोथ ऐड हो जाएगी 1 साल की इनटू 1 प्लस जी, ये बन जाएगा हमारा गिवन। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए आपको दिया है करंट डिविडेंड इतनी किसी जी नोट, उसमें ग्रोथ आपको ऐड करनी पड़ेगी डिवाइडेड बाय प्राइस प्लस ग्रोथ। और देखिए आपको पहले ही दिया एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता है कि उसमें ग्रोथ ऑलरेडी इंक्लूड है हमारी पहले साल की। तो आपका डायरेक्ट फार्मूला है गिवन अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। तो दिस इज फार्मूला ऑफ के एंड इन दिस केस वी कैन आल्सो डिटरमाइन प्राइस ऑफ शेयर। तो आप जी को इधर ट्रांसफर करेंगे के माइनस जी और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्राइस आ जाएगा। So we can determine current price of share also that is P0 is equal to D0 into 1 plus growth upon K minus G, or we can say this is equal to D1 upon K minus growth। तो अब इसमें देखते हैं कि ग्रोथ रेट आपको कैसे डिटरमिन करनी है एवरेज। इसमें दो मॉडल चलते हैं, देखिए आपको पिछले सालों के डिविडेंड दिए हैं तो हम उसकी रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं जिसका नाम है कंपाउंडेड ग्रोथ रेट। उसका फार्मूला बन जाता है, सबसे पुराना डिविडेंड देखो कौन सा है D0, उसमें ग्रोथ है कर दो फॉर एन नंबर ऑफ ईयर, कितने सालों का डिविडेंड दिया है, टाइम गैप कितना है आपका, ये हमारा है लेटेस्ट डिविडेंड। तो उससे जो जी की वैल्यू सोल्व हो जाएगी तो वो आपकी ग्रोथ रेट आ जाएगी। अगर भाई एक चलता है हमारा रिटेंशन रेशो मॉडल विच इज गिवन बाय गॉर्डन। तो एज पर जिस मेथड की ग्रोथ होती है, जितना प्रॉफिट कंपनी रिटेन कर रही है उसको फिर हम री इन्वेस्ट करके उससे जो रिटर्न मिलती है इक्विटी की, और जो रिटेन प्रॉफिट है वो इक्विटी फंड से हमारे को ग्रोथ का फार्मूला बनना था रिटेंशन रेशो कितनी है इनटू ROE। रिटेंशन होती है कितने परसेंट प्रॉफिट हम रिटेन करके है विच इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो DP रेशो इनटू ROE होती है इक्विटी फंड से कितनी रिटर्न आपको मिल रही है, तो इतनी ग्रोथ का फार्मूला बनाते हैं। रिटेंशन को हम स्मॉल b से शो करते हैं, ROE को स्मॉल r से। तो ग्रोथ इज इक्वल टू रिटेंशन इनटू ROE। तो थर्ड अप्रोच टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज अर्निंग्स टू प्राइस अप्रोच विच इज आल्सो कॉल्ड एज अर्निंग्स यील्ड। So as per this approach, cost of equity refers to percentage of earnings on current price of share. It means in this case we calculate KE as percentage of EPS to current price of share. So this approach is applicable when the company is not paying dividends. So now there are two possibilities if earnings are constant. So number one case is constant EPS, then KE is equal to EPS divided by price of share into 100. तो इट मीन्स किसी का जो अर्निंग्स की आपको कितने परसेंट इनकम हो रही है, सो किसी का जो कॉस्ट टू कंपनी विच इज का जो अर्निंग्स यील्ड। सेकंड केस है यदि आपकी EPS फ्लक्चुएट कर रही है, EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर, तो उस केस में हम उसकी कैलकुलेट करके हैं ग्रोथ कितनी हो रही है EPS में, तो आपका फार्मूला बन जाएगा के इक्वल टू करंट EPS इन जीरो पीरियड इनको 1 प्लस ग्रोथ अपॉन करंट प्राइस प्लस ग्रोथ। तो करंट EPS में जब हम ग्रोथ ऐड कर रहे हैं जिस बिकम से एक्सपेक्टेड EPS ऑफ नेक्स्ट ईयर, so we can say that K is equal to EPS of first year means expected EPS upon current price of share plus growth rate. So then we have a fourth approach to determine cost of equity is capital asset pricing model which is called CAPM approach. So as per this method cost of equity KE is equal to RF plus beta into RM minus RF। तो इस केस में हम लेते हैं जो कॉस्ट इक्विटी है उसमें आपको कुछ मिनिमम रिटर्न मिलनी चाहिए और प्लस आपका जो रिस्क होता है इक्विटी में उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलनी चाहिए। तो इसमें जो RF है आपका रिस्क फ्री रिटर्न। एक में जब इक्विटी में कोई रिस्क नहीं है तो ये नॉर्मली होती है रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी या रिटर्न ऑफ बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। तो सेकंड आता है RM है कि मार्केट में कितनी रिटर्न चल रही है, मार्केट में जैसे इक्विटी मार्केट है ओवरऑल उसमें कितनी रिटर्न है आपकी। और बीटा मेजर करता है इक्विटी का रिस्क फैक्टर। नॉर्मली हाई बीटा मीन्स हाई रिस्क, लो बीटा मीन्स लो रिस्क। और RM माइनस RF शो करता है आपको एक्स्ट्रा रिटर्न कितनी मिल रही है मार्केट में, जिसको हम कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो ये मार्केट की रिटर्न है एक्स्ट्रा, और इक्विटी में आपको कितनी एक्स्ट्रा रिटर्न मिलनी चाहिए वो आप बीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए जो भी रिस्क फैक्टर है आपका, तो ये बन जाएगा आपका इक्विटी रिस्क प्रीमियम। तो इट मीन्स RM माइनस RF होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम, जब हम उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो बन जाता है इक्विटी रिस्क प्रीमियम विच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन इक्विटी।
उसमें प्लस कर दीजिए आप रिस्क फ्री रिटर्न, तो ये बन जाएगी टोटल रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर विच इज आल्सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू कंपनी। तो दिस इज फार्मूला ऑफ के आर एफ प्लस बी कैन टू आर एम माइनस आर एफ। तो कैन वी हैव फिफ्थ अप्रोच, दिस इज रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। तो रियलाइज यील्ड अप्रोच अप्लाई होती है जब हम शेयर की रिटर्न कैलकुलेट करते हैं उनका बेसिस ऑफ पास्ट डिविडेंड से एंड शेयर इज हेल्ड फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। तो इसमें आपका फार्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रियलाइज्ड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड्स एंड सेल प्राइस ऑफ शेयर रियलाइज्ड दैट इज के इज सेम एक्चुअल रिटर्न रियलाइज्ड बाय शेयर होल्डर। तो इसमें हम ये देखते हैं कि शेयर होल्डर को कितनी रिटर्न मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डिविडेंड्स एंड जो सेल प्राइस है शेयर का, तो वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी मानी जाएगी कंपनी के। तो नॉर्मली ये अप्रोच कब अप्लाई होती है जब हम फ्यूचर के डिविडेंड्स को एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली। तो हमारे पास पास्ट डिविडेंड्स अवेलेबल हैं, उनके बेस पे हम डिटरमिन करके हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इट मीन्स के इज दैट रेट ऑफ रिटर्न होती है वैल्यू फॉर एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स एंड सेल प्राइस। तो जो पास्ट आपको दिए हैं डिविडेंड्स 4-5 सालों के और प्लस जो इस प्राइस पे शेयर को सेल कर रहे हैं, तो वो रिलाइज होगा शेयर होल्डर को, उसकी प्रेजेंट वैल्यू अपने इक्वल करनी है परचेज प्राइस ऑफ शेयर। It means we can say that our equation becomes purchase price of share which is P naught is equal to total present value of dividends and the sale price of share at R। अभी जो R है ये आपका मिसिंग है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन जाएगी। तो उसके लिए आपने इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई करना है जिसको हम ये भी कहते हैं IRR अप्रोच। आप टेबल बना लीजिए, ईयर्स हो गए 1 से लेकर N, कैश फ्लो से आपको हर साल डिविडेंड है जितना भी कंपनी पे कर रही है, लास्ट में आ जाएगा जो सेल प्राइस है शेयर का जिसे कहा कि PN। PV फैक्टर लेंगे हम, एक लो रेट एक हाई रेट। जैसे क्वेश्चन साइलेंट है, कोई रिटर्न हमें मेंशन नहीं की, तो आप 10% से स्टार्ट कर सकते हैं, देन यू कैन टेक मे बी 15-12%। फिर उसमें आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी एक लो रेट के ऊपर एक हाई रेट के ऊपर, देन यू कैन इंटरपोलेट। तो इसका फार्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू है कि लो रेट माइनस P0 जो आपका परचेज प्राइस था डिवाइडेड बाय डिफरेंस है इन टू प्रेजेंट वैल्यूज में एंड इन टू डिफरेंस इन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये नॉर्मल मेथड है इंटरपोलेशन का जो कैपिटल वेस्टिंग में भी यूज़ करते हैं, जो अभी हमने कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी यूज़ किया है। नाउ लेट अस डिस्कस सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस पर्पज। So first problem is related with the cost of redeemable debt. So in this case data given is A Limited is proposing to sell a 4-year 12% bond of ₹1,000 at a discount of 5%. And the bond amount will be amortized, which means repaid equally over its life. So what is bond's effective cost if corporate tax rate is 30%? ये आपका रीडीमेबल बॉन्ड है जो आपने इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करना है। आपको डाटा मेंशन किया है, 0 टाइम पीरियड में कंपनी ने 12% बॉन्ड इशू किया है ऑफ ₹1,000 एंड दिस इज रिडीम्ड इक्वली ओवर इट्स लाइफ इज 4 ईयर्स। इट मीन्स इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो आपकी रिडेम्पशन वैल्यू आ जाएगी एवरी ईयर ₹250 एंड इशू प्राइस आपको दिया है 5% डिस्काउंट पर है, तो इट मीन 950 और टैक्स रेट है आपका 30%। तो जब हम इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करते हैं तो आपका सिर्फ प्राइसिंग वैल्यू मेथड ही अप्लाई होगा। तो उसके लिए आपको टेबल ड्रॉ करना है, ईयर्स हैं 1 2 3 4, आपने कैश आउटफ्लो शो करना है कंपनी का। नंबर 1 को रिडेम्पशन आएगी हर साल 250, फिर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पहले साल इंटरेस्ट होगा 1,000 के ऊपर जिसे 12% 120, उसको बनाया हमने आफ्टर टैक्स। अब बैलेंस आपका अमाउंट रह गया 750 सेकेंड ईयर में, तो 750 के ऊपर 12% इंटरेस्ट आ जाएगा ₹90 एंड दिस इज मेड आफ्टर टैक्स। अब थर्ड ईयर में आपका बैलेंस अमाउंट रह गया 500 ओनली, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट है ₹60 एंड दिस इज आफ्टर टैक्स 0.7। फोर्थ ईयर में आपका बैलेंस रह गया 250 ओनली, उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा ₹30 विच इज 12% एंड आफ्टर टैक्स। तो टोटल आपके आउटफ्लोस आ रहे हैं ये 334, 313, 292, 271। अब आपने इसकी प्राइसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू इशू प्राइस। तो स्टार्टिंग रेट आप क्या ले सकते हैं जो आपको दिया है 12%, तो हमने 12% के बेस पर प्राइसिंग वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट किए 4 ईयर से, मल्टीप्लाई कीजिए कैश आउटफ्लो से, सो टोटल प्राइसिंग वैल्यू आ रही है कैश आउटफ्लो की 927.98।
और हमें चाहिए 950। इसको इंक्रीज करना है हमने। इंक्रीज करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कर दिया हमने 2% से। तो नाउ लेट अस अप्लाई पीवी फैक्टर एट 10%। 0.909 826 ये 4 सालों का है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 966 एंड दिस इज मोर देन 950। अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं। तो बाय इंटरपोलेशन वी गेट कॉस्ट ऑफ डेट विच इज कॉल्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो लो रेट है आपका 10%, उसके बेस पे प्रेजेंट वैल्यू है एक लो रेट 966 माइनस इशू प्राइस है, नीचे डिफरेंस आएगा दोनों प्रेजेंट वैल्यूज में इनटू डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 माइनस 10। So by solving this, we get cost of debt is 10.86%. तो नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर सेकंड, दिस इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें आप देखिए डाटा मेंशन किया है हमें। PQR लिमिटेड इक्विटी शेयर इज कोटेड इन द मार्केट एट ₹50 पर शेयर करंटली। कंपनी पेज अ डिविडेंड ₹4 पर शेयर एंड इन्वेस्टर्स मार्केट एक्सपेक्ट्स ए ग्रोथ रेट ऑफ 6% पर एनम। तो आपको मेंशन किया है करंट प्राइस है शेयर का, करंट डिविडेंड है, ग्रोथ आपको दे रखी है। अब इसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीन पार्ट्स हैं। नंबर 1 ये आस्किंग कैलकुलेट कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो आप देखिए कि आपको डाटा दिया है PQR लिमिटेड 0 पीरियड में करंट प्राइस है शेयर का 50, करंट डिविडेंड है ₹4, ग्रोथ है 6%। पर इक्विटी की लाइफ मेंशन नहीं की तो ये परपेचुटी मानी जाएगी। तो नंबर 1 बिकॉज इक्विटी की परमानेंट कैपिटल। सो के का फार्मूला है करंट डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ अपॉन करंट प्राइस प्लस ग्रोथ। करंट डिविडेंड है 4 प्लस ग्रोथ है 1.06 6% है, प्राइस है 50 प्लस 0.06 है। सो वी गेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू 14.48%। तो सेकंड पार्ट यूर आस्किंग इफ एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट लीजिए 8% है, यानी कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर। तो अब आपको मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। इट मीन्स यही फार्मूला है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जी इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई P0 मीन्स ये बन गई B0, फार्मूला बन गया G0 इंटू 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी। अब के मेंशन नहीं किया इन्होंने क्वेश्चन में। इट मीन जो के हमने कैलकुलेट किया है यही यूज करना है। बट आपकी ग्रोथ चेंज हो गई है, ग्रोथ हो गई है अब आपकी 8% की। तो करंट डिविडेंड सेम है 4 इंटू 1.08, के है आपकी 14.48% माइनस 8% ग्रोथ। So we get market price per share is ₹66.67. So number third part है if company issue 10% debentures of face value ₹1,000 and realizing ₹960 per debenture when debentures are redeemable after 12 years at a premium of 12%, what is cost of debenture? Tax rate है 30%। अब आपने कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करनी है। 0 पीरियड है थर्ड में, 10% डिवेंचर इशू किए हैं ₹1,000, इशू प्राइस है 960, लाइफ आपको दिया 12 ईयर्स, रिडेम्पशन वैल्यू है 12% प्रीमियम के ऊपर, इट मीन्स 1120 और टैक्स रेट है 30%। तो फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने के का। इंटरेस्ट उसको बनाया आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट आएगा फेस वैल्यू के ऊपर 1000 इंटू 10% आफ्टर टैक्स प्लस रिडेम्पशन वैल्यू है आपकी 1120 माइनस इशू प्राइस है 960 डिवाइडेड बाय लाइफ। तो ये बन गया हमारा जो टोटल लॉस हो रहा है इशू का, उसको बना लिया हमने एवरेज डिवाइडेड बाय एवरेज अमाउंट ऑफ डिबेंचर जिसे रिडेम्पशन प्लस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 100। तो बाय सॉल्विंग दिस यू गेट कॉस्ट ऑफ डेट 8.013%। सो लेट अस सी कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग अर्निंग्स। कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग अर्निंग्स इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम डिविडेंड टू शेयर होल्डर माइनस पर्सनल टैक्स ऑफ शेयर होल्डर एंड ब्रोकरेज कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर। It means we can say that cost of retained earnings represents net income achieved by shareholder. So let us see cost of retained earnings which is denoted by KR. So in this case it is the rate of return which shareholders can achieve by reinvesting the dividends received. That is it is opportunity cost to the company. Retained earnings means when company earns profits, so they cannot distribute it to shareholders. If these are given to shareholders as dividend, then how much income is achieved by shareholder by reinvesting those dividends? So that return which is not received by shareholder by reinvesting the retained earnings, it becomes opportunity cost to company. तो मीन्स जो डिविडेंड से रिटर्न मिलनी थी शेयर होल्डर को वो अब उनको नहीं मिलेगी, तो वो कॉस्ट बन जाएगी कंपनी की। तो आपका फार्मूला है KR इज इक्वल टू कॉस्ट इक्विटी जो डिविडेंड की परसेंटेज है, उसमें से जब शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा तो उसके ऊपर कुछ आपके एक्सपेंसिव होते हैं री इन्वेस्टमेंट के, उसको कहते हैं F जिसे परसेंटेज ऑफ
फ्लोटेशन कोस्ट्स और ब्रोकरेज ऑन री इन्वेस्टमेंट तो वो माइनस कर लीजिए। और कई बार डिविडेंड आपका टैक्सेबल भी होता है तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो टीपी आप माइनस कर लीजिए। टीपी इज परसेंटेज ऑफ पर्सनल टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर। So therefore, cost of recurring earning is K into 1 minus F into 1 minus TP। तो इसमें जितनी रिटर्न आपको मिल सकती है शेयर होल्डर को डिविडेंड से, तो वो कंपनी की कॉस्ट बन जाएगी। नाउ लेट अस डिस्कस कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल। तो कन्वर्टिबल सिक्योरिटी इज कन्वर्टिबल डिबेंचर और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। So in case of convertible, there are two components of cost. Number one is annual cost of interest after tax or preference dividend. Second component is our flotation cost, which represents the difference between conversion value, which is our market price of shares minus issue price. Thus, cost of convertible represents average cost of interest or dividend and flotation cost on average amount of convertible used by a company. So companies issue sometimes convertible debenture or convertible preference share. So let us see how to determine its cost of a convertible. So convertible can be a convertible debenture denoted by CG or a convertible preference share which is called CPS. So in case of convertible, company pays annual interest or dividend and on maturity it is converted into equity shares of the company. तो इट मीन्स आपके जो कैश फ्लोज बनते हैं जीरो पीरियड में कंपनी ने इशू किया है कन्वर्टिबल, तो वी हैव P0 इशू प्राइस और मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल। तो हर साल कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है या डिविडेंड पे कर रही है उसकी कॉस्ट आ जाएगी, उसको हमने ए से डिनोट कर लिया है। सो ए इज एनुअल कॉस्ट टू कंपनी, आर आ जाएगी आपकी रिडेम्पशन वैल्यू ऑन मैच्योरिटी। तो अब देखिए ए की वैल्यू क्या है। डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट आ जाएगा, उसको आफ्टर टैक्स बना लीजिए। प्रेफरेंस शेयर के केस में प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा हर साल। रिडेम्पशन वैल्यू डिपेंड करती है आपको कितने शेयर्स मिलेंगे कन्वर्जन के टाइम, या कितने शेयर कंपनी इशू कर रही है और उस टाइम मार्केट प्राइस क्या होगा शेयर का। इट मीन्स कन्वर्जन रेशो होगी आपकी M इनटू PN हो गया आपका प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर N पीरियड। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल की। नंबर वन फार्मूला अप्रोच ये अप्लाई करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ CG और कॉस्ट ऑफ CPS इज इक्वल टू एनुअल कॉस्ट कितनी है प्लस रिडेम्पशन माइनस इशू प्राइस अपॉन लाइफ, ये बन गई आपकी एवरेज जो आपकी इशू कॉस्ट है डिवाइडेड बाय एवरेज अमाउंट ऑफ कन्वर्टिबल R प्लस P0.2 टाइम्स 100। या फिर आप सेकंड अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं जिसे प्रेजेंट वैल्यू विच इज कॉल्ड यील्ड और IRR अप्रोच। तो उस केस में आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एनुअल जो आपका कैश आउटफ्लो है कंपनी का प्लस जो रिडेम्पशन वैल्यू है एट R, सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू करंट प्राइस मीन्स इशू प्राइस और मार्केट प्राइस। तो आप एक टेबल ड्रॉ कीजिए। तो ईयर्स हैं 1 to N, कैश फ्लोज हैं आपके हर साल एनुअल कॉस्ट आएगी कंपनी की A प्लस लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई कीजिए, लो रेट एंड हाई रेट। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं जो कन्वर्टिबल डिबेंचर का या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिविडेंड दिया है। तो एक लो रेट है एक हाई रेट, उसमें प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, देन यू कैन इंटरपोलेट। सो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू लो रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू लो रेट माइनस करंट प्राइस, डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू एंड डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेम ही मेथड है जो हम डिबेंचर में या प्रेफरेंस शेयर में या इक्विटी में यूज करके आ रहे हैं, इंटरपोलेशन मेथड जिसे कहा जो प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच है। Next we have problem number 3. So this is based on cost of convertible debenture. So let us see data given in this question. So we are given that TT Limited issue 20,000 10% debentures of ₹100 each with a maturity period of 5 years. And at the option of the debenture holders, these will be converted into equity shares in the ratio 1:5, that is 5 shares for each debenture. And current market price of share is ₹20, and historically the growth rate of share is 4% per annum. And assuming tax rate 25%, we have to compute the cost of 10% convertible debenture using approximation method and internal rate of return, which is also called the present value or interpolation method. So let us see data given in this question is in 0 time period company has issued 10% convertible debenture of ₹100 and the life is given 5 years and the redemption is it will be converted into 5 shares. So current price of share is given ₹20 and the growth rate in price of share is 4%. So it means you will get after 5 year shares on conversion. So we have to determine what is price of share after 5 years.
तो उसका फार्मूला बन जाएगा P5 इज इक्वल टू करंट प्राइस P0, उसमें ग्रोथ ऐड कर लीजिए फॉर 5 ईयर्स से। तो 20 आपका करंट प्राइस है, ग्रोथ है आपकी 1.04 मीन्स 4%, रेज टू पावर 5, तो दिस वैल्यू कमिंग 24.333। तो ये जो कन्वर्जन है ये ऑप्शन की है शेयर होल्डर्स को, हमने डिबेंचर होल्डर को। तो आपकी रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगी, 5 साल के बाद आपको 5 शेयर मिलेंगे, उसका प्राइस है 24 एंड किसी 121.665, और ये आपकी ग्रेटर है लेकिन आप नॉर्मली रिडीम करके हैं जिसकी वैल्यू है 100 रुपीज़। तो इट मीन्स दिस ऑप्शन इज बेटर फॉर डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट डिबेंचर इनटू शेयर्स। अब आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कंपनी की। नंबर 1 अप्रोक्सीमेशन मेथड में सिंपल फार्मूला है, इंटरेस्ट उसको बनाना है आफ्टर टैक्स प्लस रिडेम्पशन माइनस इशू प्राइस अपॉन लाइफ अपॉन रिडेम्पशन प्लस इशू प्राइस अपॉन 2 टाइम्स 100। तो इंटरेस्ट है आपका 100 के ऊपर 10%, 10 रुपी, उसको बनाया हमने आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट है 25%, सो 1 माइनस 0.25 इज 0.75। आर है आपका 121.65 माइनस इशू प्राइस है 100, लाइफ है आपकी 5 ईयर्स and this is average of R and P. So this one is coming to be 10.68% is cost of convertible debenture. तो सेकंड आपको अप्लाई करना है इंटरपोलेशन मेथड, विकियासो का प्रेजेंट वैल्यू मेथड और IRR मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें आपको देखना है कि फ्यूचर में जो कैश आउटफ्लोस होंगे कंपनी के ईयर्स 1 to 5 में, हम हर साल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आफ्टर टैक्स बन जाएगा 7.50, लास्ट में होगी रिडेम्पशन वैल्यू जिसकी वैल्यू है 121.665। ये हमारे कैश आउटफ्लोस हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू इशू प्राइस। तो पीवी फैक्टर आपने कहाँ से स्टार्ट करने हैं, वी हैव स्टार्टेड विद 10%। तो 10% ये 5 साल का एन्युटी फैक्टर है, ये सिंगल फैक्टर है 50 ईयर का 0.621, टोटल प्रेजेंट वैल्यू है 103.99, बट दिस इज मोर देन 100 रुपीज। टू रिड्यूस दिस वी हैव टू इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने अप्लाई किया है 11%, उसके बेस पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू है 99.93 एंड दिस वन इज लेस देन 100। अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 11 के आसपास ही आएगा आंसर, ये 100 ही बन रहा है। तो इंटरपोलेट कर लिया हमने, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस P100, डिफरेंस प्रेजेंट वैल्यू में डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट में, सो कॉस्ट की कमिंग 10.98%। तो अब देखें दोनों मेथड में आपको डिफरेंस मिल रहा है 0.3% का, नॉर्मली अप टू 1% तक का डिफरेंस आ सकता है जब आप मेथड चेंज करके। So this is the cost of a convertible debenture. So next we have a problem number 4. So this is related to the determination of cost of equity by realized yield method. So let us say data given in this question is calculate cost of equity from the following data using realized yield approach. आपको ईयर्स दिए हैं 1 2 3 4 5, डिविडेंड पर शेयर गिवन एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड प्राइस पर शेयर गिवन ब्रैकेट में मेंशन किया है एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। तो प्राइस फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में है 9, देन सेकंड ईयर के बिगनिंग में 9.75, 11.5, 11 एंड फिफ्थ ईयर के बिगनिंग है 10.6। तो उसमें डिविडेंड को आपका ईयर के एंड में है, पर जो प्राइस है बिगनिंग में उसको हम थोड़ा करेक्ट करके लिखते हैं और आपको डिटर्मिन करनी है KE विद द हेल्प ऑफ रियलाइज्ड यील्ड मेथड। तो रियलाइज यील्ड में होता है कि हमने जीरो पीरियड में शेयर को पहले परचेज किया इन्वेस्टर ने, फिर उसको वो सेल कर देगा लास्ट ईयर में, उसको जितनी रिटर्न मिलेगी एवरेज बेसिस पे वो आपकी KE मानी जाएगी पूरा कंपनी। तो स्टार्ट करते हैं, जो को डाटा मेंशन किया है तो पहले हम कर रहे हैं इसमें, तो इसमें दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 तो है प्रेजेंट वैल्यू या इंटरपोलेशन मेथड। अब मैंने ईयर को ठीक करके लिखा है 1 2 3 4 है और फर्स्ट का बिगनिंग है 0 ईयर। डिविडेंड जो हमें दिया है वो साल के एंड में ही है 1 2 3 4 5 ईयर, पर प्राइस जो दिया है फर्स्ट ईयर का जो में दिया है वो बिगनिंग में है, तो फर्स्ट ईयर का बिगनिंग है 0 पीरियड। तो ऐसे ये सेकंड ईयर का अब बिगनिंग है, थर्ड ईयर बिगनिंग, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर बिगनिंग। तो रिलायंस मोटर में आप देखोगे कि आपने यदि 0 पीरियड में शेयर को परचेज किया है इन्वेस्टर ने, तो वो आपका सेल हो रहा है 10.60 आफ्टर 4 ईयर। फिफ्थ ईयर का प्राइस हमें मेंशन नहीं किया है, तो उतनी जो हमारा टोटल पीरियड बनेगा वो आपका बन जाएगा 4 ईयर्स इन दिस केस। अब आपको कैलकुलेट करनी है, ये हमारे कैश इनफ्लोस हैं और आपका 0 पीरियड में जो प्राइस है 9 वो हमारा आउटफ्लो है और बाकी 4 सालों के कैश इनफ्लोस हैं। डिविडेंड आपको मिल रहा है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और फोर्थ ईयर मिलेगा डिविडेंड प्लस सेल प्राइस ऑफ शेयर। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो पहले हमने कैलकुलेट किया है 15% के बेस पर पीवी फैक्टर, टोटल प्रेजेंट वैल्यू है 9.194, दिस इज स्लाइटली हायर देन 9 रुपीज। टू रिड्यूस दिस हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर गया है 16%, उसके बेस से प्रेजेंट वैल्यू है 8.9154 विच इज लेस देन 9। अब आप इंटरपोलेट कर लीजिए, KE आ जाएगी।
लोअर एक है आपका 15 प्लस पी बी है आपकी लोअर एक का 9.194 माइनस 9 के इक्वल करना है आपने डिवाइडेड है, इन दोनों में डिफरेंस है आपका, तो इनटू अवर 1। तो दिस इज कमिंग 15.73% की कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये है एक्चुअल में जो रिटर्न मिल रही है शेयर होल्डर को पिछले 4 सालों में, तो वही हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी मानी जाएगी एज पर रियलाइज मेथड। अब देखिए इसमें एक सेकंड अप्रोच भी चलती है। सेकंड अप्रोच ये है कि हम हर साल की रिटर्न कैलकुलेट करके हैं, क्योंकि आपके पास हर साल का प्राइस अवेलेबल है, फिर उसको एवरेज बना लेते हैं, जिसे कहा गया एवरेज यील्ड मेथड। तो आप देखो रिटर्न कैसे निकालेंगे, यील्ड मीन्स रिटर्न फर्स्ट ईयर की, फार्मूला है डिविडेंड प्लस प्राइस जितना आपको मिलेगा आफ्टर 1 ईयर, और P0 का जो परचेज प्राइस है आपका डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 कर सकते हैं, वो परसेंटेज बन जाएगी, तो ये आपकी रिटर्न आ जाएगी शेयर होल्डर के। तो दिस इज कमिंग 19.44%, विच इज कॉल्ड 0.1944। सेकेंड ईयर में डिविडेंड सेकेंड ईयर का आएगा, सेल प्राइस हो गया शेयर का सेकेंड ईयर का, और फर्स्ट ईयर का अब बन जाएगा परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय P1, तो इसकी रिटर्न बन रही है 28.21%, 0.2821। सिमिलरली फॉर थर्ड ईयर में डिविडेंड थर्ड ईयर का है, प्राइस थर्ड ईयर माइनस P2, नीचे भी P2 आएगा, तो इसकी रिटर्न आ रही है 6.09%। डिविडेंड लिए हैं आपको, प्राइस भी किए। अब फोर्थ ईयर में तो आपको डिविडेंड मिला फोर्थ ईयर का 1.25, सेल प्राइस है 10.6 माइनस 11 था आपका प्रीवियस ईयर का प्राइस है, तो एक तरीके से वो परचेज प्राइस बन गया है डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100 7.73%। अब ये आपकी रिटर्न है हर साल की सेपरेटली, इसको बनाना है हमने एवरेज, वो आपकी के मानी जाएगी। फार्मूला देखो क्या बनेगा, तो 1 प्लस आर होगी एवरेज, और पावर है आपकी N 4 ईयर्स, कि 4 साल में आपको एवरेज रिटर्न कितनी मिलेगी, इसकी टोटल वैल्यू इतनी बननी चाहिए। ये कि आप 1 रुपये इन्वेस्ट करके हैं, उसमें पहले साल रिटर्न मिलेगी R1, फिर दूसरे साल की ऐड होगी, तीसरे की, फोर्थ ईयर की, तो इतनी 1 प्लस आर की पावर 4 इक्वल टू ये 1 में हमने ऐड कर दी रिटर्न, ये पहली परसेंटेज में है आपकी, डिवाइड कर रखे हैं 100 से, 19.44% होता है 0.1944, किसी 1.1944 एंड 1.2821, 1.0609 एंड 1.0773, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल ये आ रहा है 1.7502, और ये जो पावर 4 है ये इधर चले गई 1/4, 1/4 क्या 1/2 इंटू 1/2, इसका कर दो डबल स्क्वायर रूट, एक बार करो स्क्वायर रूट, फिर उसको दोबारा कर दो आप स्क्वायर रूट, दिस फैक्टर इज कमिंग 1.150। अब ये 1 आपका उधर जाके माइनस हो जाएगा उसमें से, तो ये रह गया 0.150 इंटू कर दो 100, तो आपकी रिटर्न आ जाएगी 15.02%। तो स्लाइड डिफरेंस है दोनों मेथड में, और दोनों ही आपके करेक्ट हैं। वही मैंने आपको बताया था, डिफरेंस हो सकता है आपको 1% तक का जब भी आप मेथड चेंज करते हैं। तो कई एज पर रिलाइज मेथड की 15% को अप्रोक्सीमेटली, और वी कैन से 15.7%। नाउ लेट अस डिस्कस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी। So in this case, cost of each source is multiplied by weight of source of finance in total capital. Weight may be determined on the basis of book value of source or market value of source in total capital of company. And this weighted average cost of capital is used as a cut-off rate. So this is a minimum return which should be achieved by a company. So once we have determined the cost of each source of capital, so now we have to determine overall cost of capital. So which is also called as weighted average cost of capital, and this is denoted as WACC, and it is denoted as KW or KO. And what is this weighted average cost of capital? It refers to overall cost of capital of a company. So it is the summation of cost of each source of finance multiplied by its proportion. Proportion means weight. एंड दिस प्रपोर्शन इज इन टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी। तो मीन्स आपने पहले सभी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट कैलकुलेट की है, अब उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करना है। वेट है कि कितने परसेंट आपका सोर्स है टोटल कैपिटल में। सोर्स मीन्स डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस है। तो आपका देखो फार्मूला बन जाएगा, तो गैस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज डिनोटेड बाय KW और KO। KO मीन्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KW मीन्स वेटेड। तो जिसे कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स KI, उसको मल्टीप्लाई कीजिए उसके वेट से, इसका समेशन, और डिवाइड हो जाएगा टोटल वेट। तो देखिए आप वेट परसेंटेज में ले रहे हैं, तो टोटल जो वेट होगा आपका दैट विल बी इक्वल टू 1। तो और वी कैन आल्सो से KW और KO इज इक्वल टू, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वेट कैलकुलेट करने की जगह जो आपकी कॉस्ट ऑफ है ईच सोर्स है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अमाउंट ऑफ ईच सोर्स है,
और डिवाइड कर दो एक ही बार में टोटल कैपिटल से। इट मीन जैसे डेट की कॉस्ट है उसको डेट के अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस से, इक्विटी को इक्विटी से, उसका कर दीजिए समेशन। बाद में जब आप टोटल कैपिटल से डिवाइड कर रहे हैं एक तरीके से समझो ये वेट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, आंसर दोनों मेथड से आपका सेम रहेगा। तो उसमें हमने पहले वेट कैलकुलेट कर लिया है डेसिमल में या परसेंटेज में, इसमें वेट आपका ऑटोमेटिकली ही फार्मूले में एडजस्ट हो रहा है। तो के आई है आपकी कॉस्ट ऑफ लीज सोर्स है जो हमने कैलकुलेट कीजिए, के जी, के ई, के पी एक्सेट्रा। देन वी हैव डब्ल्यू वाई जिस वेट और परसेंटेज ऑफ ईच सोर्स इन टोटल कैपिटल है। तो वेट्स हम जो लेते हैं अब इसमें देखते हैं कि वेट्स आप किस बेसिस पे डिटरमिन करते हैं। तो वेट्स में भी डिटरमिन ऑन बेसिस ऑफ बुक वैल्यू होते हैं एज पर बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में आपको वैल्यूज दी हैं, और मार्केट वैल्यू। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं मार्केट वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या है आपकी, बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल में आता है आपका डेट है, प्रेफरेंस कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस है, विच आल्सो कॉल्ड रिटेनिंग अर्निंग्स। ये टोटल कैपिटल बन जाएगा और इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए कि परसेंटेज ऑफ डेट कितना है टोटल कैपिटल में, परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस, इक्विटी एंड रिटेनिंग अर्निंग्स, तो वो आपके वेट्स बन जाएंगे। तो सेकंड है अब आपको कैलकुलेट करना है देखिए मार्केट वैल्यू के बेस पे वेट। तो पहले हम डिटरमिन करके हैं मार्केट वैल्यू कैपिटल जिसको हम एम वी से डिनोट कर रहे हैं। इसमें आएगा मार्केट वैल्यू डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी, ऑफ ईच सोर्स किसी नंबर ऑफ शेयर और डिबेंचर। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू भी है वो पेजर वैल्यू होती है, उसको उसकी फेस वैल्यू से डिवाइड कीजिए, वो बन जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स इनटू करके जो मार्केट प्राइस आपको मेंशन किया है पर शेयर या पर डिबेंचर, ये मार्केट वैल्यू आ जाएगी। सेकंड इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि जो मार्केट वैल्यू इक्विटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इट मीन्स जो नंबर ऑफ शेयर से वो मल्टीप्लाई किया अपने मार्केट प्राइस से, वो टोटल वैल्यू आएगी इक्विटी की। बाकी यदि आपकी अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग अर्निंग डिफरेंट है तो उस केस में फिर आपने स्प्लिट करना है। इफ के एंड के आर डिफरेंट है फिर आपने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को स्प्लिट करना है दो कंपोनेंट्स में। इसमें से मार्केट वैल्यू कितनी है इक्विटी शेयर कैपिटल की एंड व्हाट इज मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेनिंग अर्निंग्स। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जब टोटल मार्केट वैल्यू है इक्विटी जो उसको आप डिवाइड कर दो इस रेशो में इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेनिंग अर्निंग जो उसकी बुक वैल्यू है। इट मीन्स जिसे जो डिवाइडिंग इन रेशो ऑफ देयर बुक वैल्यूज, तो उससे आपकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है इक्विटी की वो आपकी डिवाइड हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। हाउ मच इज मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड हाउ मच इज मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेनिंग अर्निंग्स। क्योंकि अब आपको कई डिफरेंट है, के आर डिफरेंट है, तो दोनों को वे हमें अलग अलग कैलकुलेट करना है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका एक टेबल बन जाएगा। सोर्स ऑफ कैपिटल है आपका तो डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, बुक वैल्यू भी है, मार्केट वैल्यू भी है, के आई दे रखी है, तो वेट कैलकुलेट कर लो बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू के बेस पर और के को मल्टीप्लाई कर दो वेट से, तो उसका जब समेशन करेंगे ये आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। So let us discuss marginal cost of capital, which is also called MCC. Marginal cost refers to cost of additional funds raised by a company for a project. And additional funds can be mix of debt and equity. So MCC is also just like a weighted average cost, which is our mix of debt and equity. Normally, when capital raise is increasing, cost of capital also rises. ये भी व्यक्ति कॉस्ट होती है, बट इसमें हम क्या है कि हम एक कोई नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसके लिए आपको एडिशनल फंड्स चाहिए, सिर्फ उसकी कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है, उसको नाम दे दिया हमने मार्जिनल, जिसे जनरेटेड है एमसीसी। तो इट मीन्स एमसीसी रेफर्स टू एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल फंड्स जो आपने रेज करनी है फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। फंड्स क्या है आपके, डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी कुछ भी हो सकते हैं जो हम रेज कर रहे हैं एक्सटेंशन के लिए। इट मीन्स जो एडिशनल फंड्स आपने रेज किए हैं सिर्फ उसी का रेट निकालो आप और उसकी कॉस्ट निकालो, हर सोर्स की उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन गया वेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिस इज कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स इनटू इट्स वेट, और उसका कर दीजिए समेशन। तो इसमें फार्मूला सेम ही है, जो वेटिंग ओवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वेटिंग में हमने लिया था ओवरऑल कॉस्ट, जो टोटल कैपिटल है इसमें हम ले रहे हैं सिर्फ एडिशनल कैपिटल जो आपने रेज किया है एडिशनल प्रोजेक्ट के लिए या फिर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 5, so this is based on overall cost of capital.
So let us see data given in this question. So we have to determine cost of capital of Best Luck Limited using book value and market value rates from the following information. तो आपको कैपिटल की इन्फॉर्मेशन दी है, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर. Book value is given rupees 120 lakhs, 30 lakhs, 36 lakhs and 9 lakhs, and market value is 200 lakhs. This is total for equity, and 33 lakhs 75,000 for preference share, and for debenture 10 lakhs 40,000. Further information is given. Equity shares new issue is price tag rupees 125 per share, and flotation cost will be rupees 5 per share. Then the second data is given for dividends. During the previous 5 years, dividends have steadily increased from rupees 10.60 to rupees 14.19 per share, and dividend at the end of current year is expected to be rupees 15 per share. आपको पिछले 5 सालों के डिविडेंड दिए हैं और नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड भी दिया है. तो पिछले 5 सालों के बेस पर हम ग्रोथ डिटर्मिन कर सकते हैं डिविडेंड की. Preference shares 15% preference share with face value ₹100 would realize ₹105 per share. Debentures company proposes to issue 11-year 15% debentures, but current yield on debenture of similar maturity and risk class is 16%. डिबेंचर्स हैं आपके, इसका इंटरेस्ट है आपका 15%, लाइफ है आपकी 11 ईयर, बाकी जो आपकी ईल्ड है इस टाइप की डिबेंचर की वो है 16%. ईल्ड का फार्मूला होता है एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय अवर करंट प्राइस ऑफ डिबेंचर. So flotation cost will be 2% and on face value of security, and corporate tax rate is 35%. तो आपको डिटर्मिन करनी है इसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डिटर्मिन कर रहे हैं जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला है गिवन अपॉन P0 प्लस जी. गिवन है एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपको दिया है. तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड. तो डिविडेंड का फार्मूला है D0 इनको 1 प्लस ग्रोथ फॉर एन ईयर एंड बजट डिविडेंड आफ्टर एन ईयर. अब पिछले 5 सालों का डिविडेंड दिया है. तो सबसे पुराना डिविडेंड है 10.6, वो D0 बन जाएगा. ग्रोथ आपकी मिसिंग है, टाइम है आपका 5 ईयर्स, और जो लेटेस्ट डिविडेंड है एग्री एंड करंट ईयर 14.19. तो इट मीन जिसे डिवाइडेड बाय दिस 1.338. अब आप रिटर्न ट्रायल से ग्रोथ कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे हमने यूम किया लेट ग्रोथ ही 5%, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1.05 रेज़ टू पावर 5 है 1.276. तो दिस वैल्यू स्लाइटली लोअर देन दिस, तो हमने इंक्रीज कर दिया है वो ग्रोथ 6% है. एट 1.06 रेज़ टू पावर 5 एग्जैक्ट फैक्टर इज 1.338. सो देयरफॉर वी कैन से कि ग्रोथ इन डिविडेंड इज 6%. अब आप फार्मूले में पुट कर रखिए कि गिवन आपको दिया है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड ईयर डिविडेंड है 15. अब आपने लेना है के लिए इशू प्राइस क्या होगा, नेट प्राइस. मार्केट प्राइस है 125 पर इशू कर रहे हैं और फ्लोकेशन कॉस्ट है 5. ये बन जाएगा नेट इशू प्राइस प्लस ग्रोथ है आपकी 6%. सो कोई इज गिवन 18.5%. तो सेकंड हमें कैलकुलेट करनी है अब कॉस्ट ऑफ रिकरिंग अर्निंग. उसका भी फार्मूला सेम है, बस सिर्फ डिफरेंस होता है प्राइस क्या लेते हैं हम, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है आपका, उसमें फ्लोकेशन कॉस्ट आपकी माइनस नहीं होगी. फार्मूला गिवन अपॉन P0 प्लस ग्रोथ 15 अपॉन 125 प्लस ग्रोथ है 6%. सो कॉस्ट ऑफ रिकरिंग अर्निंग इज 18%. तो नंबर 3 की कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. उसमें सिंपल फार्मूला है, लाइफ मेंशन नहीं की. प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू 100. प्रेफरेंस डिविडेंड है 15%, इट विल बी 15 रुपीज ऑफ 100 रुपीज फेस वैल्यू. प्राइस है 105 इंटू 100 जिसे 14.29%. देन अगर 4 फिगर अब आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के. पर उसके लिए पहले आपको मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा डिबेंचर का. तो उसका एक फार्मूला मिल जाएगा इंटरेस्ट अपॉन ईल्ड कितनी है आपकी, क्योंकि ईल्ड का फार्मूला होता है इंटरेस्ट अपॉन मार्केट प्राइस. करंट ईल्ड आपको दे रखी है, तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो मार्केट प्राइस बन गया. इंटरेस्ट को डिवाइड कर दो ईल्ड से. इंटरेस्ट है आपका 15%, सो दिस विल बी 15 अपॉन 16%. सो करंट प्राइस इज कमिंग 93.75. अब इसमें आपकी फ्लोकेशन कॉस्ट भी है. जब आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं 2% वो आपको लेनी है फेस वैल्यू के ऊपर, तो वो हमने माइनस कर की. नेट इशू प्राइस बन जाएगा डिबेंचर का 93.75 माइनस 2 रुपये की फ्लोकेशन कॉस्ट, जिसे 2% ऑफ 100 रुपीज़, तो 91.75. तो अब आप अप्लाई कीजिए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का फार्मूला. के का फार्मूला है इंटरेस्ट इनको 1 माइनस टैक्स प्लस आर माइनस पी अपॉन एन अपॉन आर प्लस पी अपॉन 2 टाइम्स 100. इंटरेस्ट है आपका 15, उसको बनाया हमने आफ्टर टैक्स. टैक्स रेट आपको गया 35%, तो जिसे 0.65
100 की रिडेम्पशन वैल्यू है, नेट इशू प्राइस है 91.75 और लाइफ हमें दिया डिवेंचर के 11 ईयर्स है। R plus P upon 2, so this cost to डिवेंचर is coming 10.95%। इसको सोल्व कीजिए, ये आ रही है 10.95%। तो अब आपको कैलकुलेट करनी है ओवरऑल वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच इज आगे के और के डब्ल्यू। तो रुपीज लैक्स में चल रहे हैं, टेबल ड्रॉ कीजिए। सोर्स ऑफ कैपिटल है इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। अमाउंट उसी बुक वैल्यू दी है, रुपीज लैक्स में है 120, 30, 36 एंड 90। देन आपको मार्केट वैल्यू दी है इक्विटी की, टोटल देखो 120, क्योंकि मार्केट वैल्यू इक्विटी है उसको हमने पोर्शन करना है या रेशो बुक वैल्यू में, 120 रेशो 30, 4:1। तो उससे आपकी मार्केट वैल्यू आ गई इक्विटी की सेपरेट और रिटेन अर्निंग से सेपरेट, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू होती है इक्विटी की वो रिप्रेजेंट करती है टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग से। मार्केट वैल्यू हमेशा कंबाइन चलती है, पर जब इनकी कॉस्ट डिफरेंट होती है तो उसको हम स्प्लिट कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 33.75 दी है, डिबेंचर की दी है 10.4, टोटल 21। अब आप मेंशन कीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपने कैलकुलेट की है, के की है देखो 18.5%, कॉस्ट टू रिटेन अर्निंग्स है 18%, कॉस्ट टू प्रेफरेंस शेयर 14.29%, कॉस्ट टू डिबेंचर आपकी 10.95% है। नाउ वी कैन कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फार्मूला है प्रोडक्ट क्या है, बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई किया के से, जिस टोटल 33.75। ऐसे मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए के से, के परसेंटेज में है हमका, सो 160 इंटू 18.5%, ये बन जाएगा 29.6। सिमिलरली जिसे अगर 40 इंटू 18%, नाउ यू टेक दिस टोटल मार्केट वैल्यू इंटू के। अब आपका फार्मूला है नंबर 1, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस बुक वैल्यू, जैसे बुक वैल्यू इंटू के डिवाइडेड बाई टोटल बुक वैल्यू से आप डिवाइड कर लीजिए, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी 17.29%। सिमिलरली के ओ है आपका ऑन द बेसिस मार्केट वैल्यू, सो दिस इज मार्केट वैल्यू इंटू के है 42.76 अपॉन टोटल मार्केट वैल्यू टू 44.15 इंटू 100, तो दिस इज 17.51%। ऊपर के और भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के या पूरे एफएम के हमने कवर कर रखे हैं थ्रू एमसीक्यू बेस्ड ऑन केस सिनेरियो, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो डू लाइक द वीडियो। एम करते हैं 10,000 लाइक्स के लिए, सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस सीरीज। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल।